Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are proceeding with some questions based on the formula of quadratic equation, and obviously the concept we have used in the derivation of quadratic formula to derive the quadratic formula. On that concept also we are going to do some questions so that आपको समझ में आए फर्स्ट थिंग, और जो बच्चे फ्यूचर में मैथ्स के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे एंड थोड़ा क्लिक होने के लिए. देखो, मैथ्स इज जस्ट प्रैक्टिस. नॉट ओनली मैथ्स, इवन द इंग्लिश, साइंस, everything requires practice. Either it is an art, either it is an cooking skills. मतलब आप लाइफ में किसी भी तरफ चले जाइए, किसी भी तरफ, अगर आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी है, यू हैव एन कमांड ओवर दैट, देन यू कैन इजिली ग्रैब दैट. ओके, एंड यू कैन गेट अ क्लिक easily. So here we have a question: 3x square plus 7x minus 2 is equals to में 0. ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल क्या था डेरिवेशन में? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स minus 2/3 is equals to 0. I hope the steps are clear to you. Do I need to recall? We just do one thing, two things. First, we make the coefficient of x square highest term degree 1. After that, we make b/2 a term. Like we multiply by 2 and divide by 2 in case if I am not getting directly 2. As you can see, यहाँ पे हमारे पास directly 2 नहीं बन रहा क्योंकि 7 is not divisible by 2, so I can't take common. But in this case, I can simply multiply. 2 से multiply किया and 2 से divide किया. इतना clear है? Now what I did, this is a square, this is 2ab, so I need to add the square of b and subtract to maintain the equation. So 7/6 is basically nothing. The square of 7/6 is nothing. That will be 49/36, and I am not writing here directly because if you get confused, so I am writing here properly. X square plus 2 7/6, and this is plus 49/36. Some of the students may arises, ma'am, why did you take here positive of this part? Why don't you take the negative part? Look, whenever we are going to deal with the identities, we work on this symbol. If this is of positive sign, then this should be have to of positive, and this is of negative, then this should be of negative. But in that case, if you are doing whole squares, the a square and b square both should be positive. Okay. Minus 2/3 plus 49/36, and this becomes what? X plus 7/6 का whole square, and this term is 49. 2/3 minus 49/36. You can simply take the LCM of this. That will be obviously 36. 12 2s are 24 minus 41 मिनट. यहाँ पे माइनस का साइन है, माय बैड, सॉरी. तो ये दोनों माइनस के, तो इधर दोनों जाके प्लस के होंगे. x plus 7/6, x plus 7/6 का स्क्वायर, और इस साइड अगर मैं बाद में अंडर रूट लेंगे, हम ऐड करें इसको तो इट विल बी 73/36. अब अगर हम अंडर रूट को हटाएं, नाउ इट्स वेरी सिंपल, रूट आ गया. ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ. डोंट फॉरगेट दिस प्लस माइनस इन योर 10th टिल योर बोर्ड्स, नॉट इवन आफ्टर. इफ यू आर टेकिंग मैथ्स इन 11th, then also you are not supposed to miss this sign. X plus 7/6, that is equals to plus minus of, now 73 is not a perfect square of any number, so it is written as under root 73 over 36 is the perfect square of 6, so it can be written as 6 square, and squares roots cut out.
so this becomes 6. And this is of positive sign. On the right hand side it becomes negative, so plus minus root 73 by 6. And now you can simply write it as like x is equals to root 73 minus 7 or minus root 73 minus 7 by 6, or it may be written as minus, अगर मैं कॉमन ले लूँ, root 73 plus 7 over 6. That's your answer. ठीक है, ये क्वेश्चन कराने का मेरा एक ही मोटो था कि आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो, एक तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करें, एंड सेकंड थिंग हमें 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए, मतलब ये क्लिक होना चाहिए. जैसे मैंने डेरिवेशन में यूज किया था ना, तो बच्चे कहते हैं कि मैम एग्जाम्पल्स में कैसे होता है, तो हियर इज द आंसर. नाउ let us proceed with the last the question based on this, and after that we are going to move on the statement questions. So here we have is x square minus x minus 12 is equals to 0. In this case already we have 1 as coefficient of x squared, so I need to work on this. Obviously we don't have here 2, here we have 1. If nothing is written that is in the coefficient of variable, and it is understood it is 1. X square multiplying by 2 and dividing by 2 minus 12 equals to 0. Don't get confused, मैंने बस थोड़ा आगे पीछे लिखा है. Now again x square minus 2x into 1 by 2. Don't cancel out this कि ये cancel हो जाएगा, नहीं, अगर cancel ही करना तो हमने किया ही क्यों. Okay, now adding and subtracting the square of this term, 1 by 4 minus 1 by 4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर. और जब वो हम आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो हमारे पास ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये प्लस रहता है, तो इसमें ये क्वांटिटी लेंगे, ये टर्म लेंगे और ये टर्म लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 1 बाय 4, और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, एक बार इसको कर ही देते हैं सोल्व यहाँ पे. तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 48. दिस इज व्हाट, दिस इज x माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, यहीं पे कर लेते हैं. माइनस 49 बाई 4 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 by 4. x minus 1 by 2 का स्क्वायर, अगेन वी विल गेट प्लस माइनस 7 by 2. मैंने डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज आप सबको पता है 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 एंड 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. सो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 7 by 2 प्लस 1 by 2, एंड नाउ यू कैन इजिली सॉल्व इट. ओके, आफ्टर गेटिंग द मल्टीप्लीकेशन 7 plus 1 8, that will be 4 and 7 minus 3 minus 3. That's it. Is it clear? Is it clear? Now let us proceed to the last topic. After that we are gonna do with our statement question, that is nature of the roots. The questions come in your exam that is based on the nature of the roots. Now what is nature of the roots? आपको लगेगा कि मैम ने बहुत ज़्यादा स्किप करा दिए, नहीं, मैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, बट अभी हम एक बार कॉन्सेप्ट्स कर लें, क्योंकि ना थोड़ा फॉर्मूला हमने किया, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा हमें. नेचर ऑफ द रूट्स क्या कहते हैं, आप सबने फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a. तो हमने यहाँ पे कहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल्स टू डी विच इज डिस्क्रिमिनेंट. नेचर ऑफ रूट्स इसी के बारे में बात करेंगे, डी के बारे में. इफ डी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन द आंसर इज, यहां से हमें क्या पता है, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब जीरोस मतलब फैक्टर्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट हियर, दैट इज डिफरेंट. रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे.
It may be 0, it may be negative, it may be positive. Real number is obviously 0, positive, negative. It may be fraction also. Okay, if d is equals to 0, then b square minus 4ac is equals to 0. The answer is real roots and equal. Real and equal roots. Clear? And the last one is d less than 0, discriminant is less than 0, that is b square minus 4ac less than 0 means no real roots. For this we derive another concept that will be introduced in your 11th, as I have already put the videos of this thing. The chapter name is complex number, but right now that is not in your business. Okay, so yeah, बट हम ये बात पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन में, इसके रूट्स निकालने को आपको नहीं कहेगा, बट कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि उसके रूट्स बताइए. मैं आपको एक रेंडम एग्जांपल लेती हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 ले लिए इज इक्वल्स टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक ऑफ कोर्स. If I am comparing this with the general equation ax square plus bx plus c, then the value of a is 1. B, obviously we don't have the x, so b will be 0, and c is 7. So to check the nature of the roots, we need to check b square minus 4ac. b square minus 4ac. Now b is what? 0 का square. देखो यहाँ पे ही आपको समझ आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ 4 into 1 into 7. 0 square 0. This entire term is negative. That means d is negative. That means no real root exists. Clear है? Is it clear? Now आपको होगी कि मैम इक्वल टू का केस. इक्वल टू का केस देखो बहुत सिंपल है. x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर. ये मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. क्वेश्चंस पेपर में आपको क्वेश्चन आया होगा और वहां पे आपसे पूछा होगा कि जो हमारे पास इनके रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा. जैसे हमने ये सॉल्व किया ना, वैसे आपको वहां पे करना होगा सॉल्व. ठीक है? इज इट क्लियर? नाउ let us do some questions. Yes, now we have, I'm taking this question from your NCERT, that is 2x square minus 3x plus 5 is equals to 0. स्टूडेंट ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की. डोंट वरी, हमने कल जो प्रीवियस वीडियो में किया that is pretty important for exercise 1 and 2 as well, and in this I'm teaching you exercise 3 statement questions. मैंने अभी होल्ड पे किए हैं, that we will gonna discuss later. And the thing is, obviously जब आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया होगा तो आपको बनाना आ गया होगा इक्वेशंस वहां से. अगर नहीं आया तो वी विल लर्न. ठीक है? और उसको सॉल्विंग का ये सब मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमें यही कैलकुलेशन सॉल्व करनी है स्टेटमेंट क्वेश्चंस में भी. दैट्स व्हाई. ठीक है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. एंड आपको रूट्स बताना है कि इनके रूट्स नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है. लेट अस डू. a कितना है यहाँ पे? 2. b कितना है? -3 and c is 5. b square minus 4ac, that mean b square means -3 का स्क्वायर, that is 9 minus 4. a कितना है? 2. c कितना है? 5. 9 4 2 जा 8 5 जा 40. obviously this is less than 0. ठीक है? so no real roots. इत्तेफाक से सेम क्वेश्चन आ गया, बट फर्क देखो, यहाँ पे b 0 था, यहाँ पे b 0 नहीं था. तो ऐसा नहीं है कि b 0 के केस में ऐसा होगा. ठीक है? और ऑलवेज वो ऐसा भी जरूरी नहीं है. अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7 होता ना तो ये रियल रूट्स आते हैं. करके दिखाओ. ओके, लेट अस प्रोसीड. इफ आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. देखो ये बहुत बेसिक है, डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए. कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स माइनस रूट 7 एक्स प्लस रूट 7. और root 7 is a what? Irrational number, which is also a real number.
सो दैट्स इट, डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए। अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अदरवाइज आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, सपोज यू हैव समथिंग लाइक 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए कितना आया 2, बी कितना आया -6, सी कितना आया 3। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स बी कितना है हमारे पास -6 का स्क्वायर, दैट इज 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36, 4 to 8, 3 is 24, विच इज वॉट पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा तो कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप निकाल के भी दे सकते हैं, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और प्लस माइनस से भी 6 बने। क्या ऐसे करने की जरूरत है, हमने फॉर्मूला लगाया ना। 36 माइनस 24 कितना बचा 12। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन स्किप किया 1 सेकेंड के लिए, 12 बचा, मतलब 12 बचा था ये हमारे पास यहाँ पे। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। बी कितना था -6, माइनस ऑलरेडी बाहर है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 36। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, जो हमने यहाँ पे चेक की थी ना वही वैल्यू तो आएगी, तो मैं डायरेक्ट ही पुट कर रही हूँ 12। ये हमारा डी तो था यहाँ पे, और 2 इंटू में 2, ये कितना आ गया 6 प्लस माइनस। अब आपको होगी कि मैम 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा भाई, हमने कब कहा कि हमारे पास सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर में ही आएंगे। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 3। अब रूट में हो तो 2 बार आ गया तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा, पेयरिंग बनता है। ठीक है, 2 सब में से कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3 बाय में 2, दैट इज योर आंसर। इज इट, क्या ये रियल रूट नहीं है? बिल्कुल है। एक चीज और, जब भी आपके इरेशनल नंबर आते हैं ना तो रूट्स हमेशा मतलब अपोजिट साइंस के साथ होंगे। इसका एक रूट है 3 प्लस √3 बाय 2 एंड दूसरा है 3 माइनस √3 बाय 2। ठीक है, ये होता है नेचर ऑफ द रूट्स। क्लियर है? अहो क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन नहीं किया इस क्वेश्चन, मैंने आपको इसी फॉर्मूले से करवाया, और आप, मैं चाहूंगी कि एक बार आप प्रैक्टिस करें जस्ट टू मेमोराइज द फॉर्मूला एंड जस्ट टू मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट। ये पता होना चाहिए, इसका डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, 101% आता है ऑलवेज। कई बार इसको स्टेटमेंट क्वेश्चंस में भी लिंक किया जाता है, हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में माइट बी, तो वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, नाउ एक अलग तरह का क्वेश्चन भी इस पे आता है। क्या वो आपसे ये कहते हैं कि लाइक इफ यू हैव सम क्वेश्चंस लाइक आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोम में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपको कहा हुआ है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। रूट्स क्या है? इक्वल। जाहिर सी बात है हम सिर्फ रियल रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सेकंड केस, रियल एंड इक्वल रूट्स, दैट मीन डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो कुछ अटपटांग सा लिख रहा है क्या, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। पुट करो वैल्यू, बी कितना है के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर 4 2 8, 8 3 24 equals to 0. K is equals to what? K square is equals to 24. Is 24 is a perfect square of any number? No, it's okay. हम 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, कैसे होगी 2 24 12 2 6 2 3 1। पेयरिंग हो गई, 2 की निकल गई। क्या 2 का एक और पेयर बन रहा है? नहीं। 3 का बन रहा है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। K इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको नहीं भूलने का, 2 √3
2 3 6, दैट इज योर आंसर। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, आइदर यू गेट इन योर केस स्टडीज और इन योर MCQs। इफ नॉट देन क्या होता है, जो 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना आपके और 4 मार्क्स के, वहां पे ऐसे पार्ट्स बन के आते हैं इन क्वेश्चंस के। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए चीज। इज इट क्लियर? आई होप द वीडियो इज यूजफुल टू यू। बिफोर एंडिंग द वीडियो, लेट अस do the last question of this video. You have, or not always you are getting the expressions to be resolved, sometimes you need to be resolved. For example, here we have this. अब आपको इस एक्सप्रेशन को ओपन करना है, कि x square minus 2kx plus 6 is equals to 0। जरूरी नहीं है हर बार k b में ही आए। अब इसके लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन है कि रूट्स जो है वो रियल है। दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। बी कितना है? -2k। ये पूरा सिंबल लेना होता है। -2k का स्क्वायर एक बार डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, -4 इंटू में a कितना है k एंड c कितना है हमारे पास बेटे 6। दिस इज व्हाट 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल्स टू में 0। 4 के दोनों से कॉमन लिया, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखो क्योंकि k की क्वाड्रेटिक बनी थी तो 2 रूट्स आएंगे। पहला क्या है k0, दूसरा क्या है k6। अब क्या मैं k0 ले सकती हूँ? अभी मैंने इस पे आंसर तो लिखा है क्योंकि यहां तक मेरी वैल्यू गई। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो अगर k0 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, बट जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज लिखते हैं जो भी इसका कोफिशिएंट होगा k कांट बी 0, ठीक है। तो k0 वाला ऑप्शन हम नेग्लेक्ट करेंगे और आंसर क्या लेंगे? k इक्वल्स टू 6। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉजिक एंड रीजनिंग। ऐसा आपको असर्शन और रीजनिंग में भी मिल सकता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसमें कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला रियल रूट का, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक की, जिसके बेसिस पे हम जो है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो जो रिजेक्ट कर रहे हैं ना वो रीजन, वो उसमें थर्ड कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस वैल्यू को रिजेक्ट कर रही हूँ उसका रीजन क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं ठीक है होगी रिजेक्ट, बात खत्म। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना। अगर फ्यूचर में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करना है और कौन सी को नहीं? सो फॉर दैट यू मस्ट लर्न इट। गॉट इट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई point and from the concept point also and exams point also। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आप एक ही क्वेश्चन में 3 से 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज कर लें, और जितने कॉन्सेप्ट यूज होंगे उतने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब आप कहोगे कि मैम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ऑन एन एवरेज दिस माइट बी कंटेन ऑफ 2 मार्क्स, ओके। अगर असर्शन रीजनिंग में आता है तो 1 मार्क्स, क्योंकि MCQ है, वहां पे आपका ऑब्वियस ही बात है ना, एक भी जहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई आपका आंसर गलत, ठीक है। और ऑब्वियस बात है केस स्टडी में भी आ सकता है। केस स्टडी में हो भी सकता है कि ये 3 नंबर का है पूरा ही, इसमें 3 चीजें पूछी गई, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि k की वैल्यू कौन सी लेंगे कौन सी नहीं, ठीक है। रूट्स पता है, और k की वैल्यू जो लेंगे हम उसको क्यों लेंगे, और जो नहीं लेंगे उसको, जिसको रिजेक्ट किया क्यों। इज इट क्लियर? सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द स्टेटमेंट क्वेश्चंस। Do like, subscribe, share as you can. Thank you.